Private Schools Management, Mr. Purram sir, to come on the dais. I request People Federation of Private Schools, Janab Sayyid Haider Ali Sahab to come on the dais. Haider Ali Sahab. Organize a very famous iftar party called Dawat Iftar, where all South Zone, not only the police personnel, the civilians are also waiting for the Dawat Iftar. Coming to the point of cleanliness, he taken the opportunity to participate in the Swachh Bharat mission and successfully organized the coaching program for SSC students in collaboration with Minority Finance Corporation in the 2016, in which 1400 students took part and the result was 90%. His fourth pillar of success is, I want to dedicate to him, his dedication, his talent, his work of leadership and his motivational character. Please lights on. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती है. So now I request Satyanarayana Garu, IPS, DCP South Zone, respected Arijana Babu Rao Sahab, additional DCP South Zone, Janab Sayyid Fakhruddin Ahmed Sahab, Janab Khurram Sahab, Janab Khalil Sahab, Janab Mastan Sahab. I am not only overwhelmed but also embarrassed to stand before you on this occasion. Sir, your presence is just like a soft petals of flower, stirring the brink of our celebrations, wrapped in fragrance of joy. Thanks for being source of strength. However, our hearts rejoice slightly to give you a warm and enthusiastic welcome, sir. Here the name of Shri V. Satyanarayana Sahab, because everyone knows him like Salman Khan of the South Zone. Please give him a big hand, because his generosity towards the South Zone is as such, because without his participation and his deeds, we would have been nothing. He has changed South Zone. When I compare with the other zone, East Zone, North Zone, West Zone, I look upon to my South Zone and see proud of myself that DCP South Zone, additional DCP South Zone, dignitaries on the dais. ये एक काबिल मुबारकबाद मौका है. आज हम लोग जमा हुए. सबसे काबिल कदर बात ये है जो डीसीपी साहब को हमारा अवार्ड मिला है, उसके लिए मैं चाहता हूँ तमाम लोग एक जोरदार तालियां आपके लिए. आज हमारा इंडियन का अवार्ड मिला है और खास तौर पे जो 4 साल का जो अरसा गुजारे हैं मैं बाबूराव. It is a very big achievement. The police and public are so close to that. कि पुलिस और पब्लिक में फर्क नहीं रहा. अपने आप को जो एक नारा था कि पुलिस इज द फ्रेंडली पुलिस, तो इट इज सच कर बताया ओल्ड सिटी को. और आपका जो नारा है कि ओल्ड सिटी इज द गोल्ड सिटी बना के रहेंगे इंशाल्लाह ताला. बाबूराव साहब के पीरियड में ही ओल्ड सिटी एक गोल्ड सिटी के तौर पे उभर रहा है और यहाँ पे रहने के लिए किसी डर खौफ के बगैर आदमी रह रहा है. खासतौर पे स्कूल में जो प्रोग्राम करवाए हैं कैरियर गाइडेंस से और एसएससी कोचिंग से, बहुत ही खास का काबिल मुबारकबाद है. और ये सब काम सरपरस्ती डीसीपी साहब के सत्यनारायण साहब की वजह से. शहनशीन पे तशरीफ फरमा मोहतरम डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी.
आज एक बहुत ही अच्छा मौका है। डीसीपी साहब को हिंदुस्तान का बारिफार अवार्ड पुलिस मेडल जो मिला है, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ हमारे एडिशनल डीसीपी साहब हरदिल अजीज शख्सियत जो आजकल नौजवानों की दिल की धड़कन बने हुए हैं, उनके लिए भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि उन्होंने 4 साल का अभियान यहाँ पर मुकम्मल किया है। आज हम सब उनको तहनीत पेश करने के लिए यहाँ जमा है। मैं ये कहूँगा कि पुराने शहर में आज जो पुलिस की जानिब से जो मुख्तलिफ नौजवानों के लिए प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, जैसा कि कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम किया and under the guidance and the leadership of our beloved DCP Saab and our Commissioner Saab also, as Sir was mentioning, and we also a little bit we also knew that our Commissioner Saab is also doing very well. So we are very lucky in Old City and in Hyderabad that we have such great officers, those who are doing humane service for us, and we all know that police always go a mile ahead to help others. But you people go extra miles to help us, especially the people of Old City. So from the depth of our heart, we congratulate you, sirs. और बाबूरा साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, जो ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाने में और आपके हर प्रोजेक्ट कामयाबी रहे, सक्सेस रहे। और आपके प्रोजेक्ट में खास तौर पे आईपीएस की जो ट्रेनिंग थी, वो गैलेक्सी कॉलेज में भी बाबूराव साहब जो बच्चों को इंकरेज करे थे। जब मैं सावधान विश्राम को बोला तो आपने मुझे क्या बहुत सारी चीज़ों के टिप्स दिए थे। तो गैलेक्सी कॉलेज में भी आईपीएस की ट्रेनिंग हुई और बाबू सिंह साहब मेरे को हर तरीके से डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स में साथ दिए। और पी सत्यनारायण साहब भी जो 5 गन जो चले थे चारमीनार से वहाँ तक बारकस तक, और जो भी कैरियर गाइडेंस, जॉब प्लेसमेंट, ये आज के 4 साल जो पीडीएस है, आज तक कोई भी ओल्ड सिटी का डीसीपी ऑफिसर से कोई काम। और मेरे सामने बैठे ऑफिसर, मेरे दोस्तों, ये एक अच्छा मौका है जहां पर 2 सीनियर कॉन्ट्राडिक्शन, एक चूंकि हम चैनल से वाबस्ता हैं, हम न्यूज़ देते हैं और हमें न्यूज़ की कुछ फीडबैक भी ऐसी रहती है, न सिर्फ ये कि हमारी न्यूज़ की आती है बल्कि डिपार्टमेंट्स की भी कई ऐसी फीडबैक्स आती हैं। तो जहाँ तक चबूतरा मिशन का ताल्लुक है, रात में जो मुहिम शुरू की गई है, इसमें थोड़ा सा आवाम के ताल्लुक से मैं मेरा पर्सनल फीडबैक देने के बजाय मैं चाहूँगा कि आवाम ने जो राय दी है उसको भी जो है डीसीपी साहब तक पहुँचाऊँ, एडिशनल डीसीपी साहब तक भी पहुँचाऊँ। हुकूमत एक जानिब ये कहती है कि लाल बाजार में नाइट बाजार कायम करना है, हुकूमत एक जानिब ये कहती है कि हाईटेक सिटी 24 घंटे खुली रहेगी, हुकूमत एक जानिब ये कहती है कि गच्चीबौली का जो बाजार है वो रात में खुला रहेगा। लेकिन फिर क्यों साउथ जोन में रात में 11 बजे के बाद ऐसी मुहिम चलाई जाती है? 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रही हैं। एक जानिब हुकूमत का ये दावा है कि हम शहर को ऐसा शहर बनाना चाहेंगे कि सिटी नेवर स्लीप, यानी हमारा शहर कभी सोएगा नहीं, हमारा शहर 24 घंटे जागेगा। और दूसरी जानिब नौजवानों की ये शिकायत है कि पुलिस की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिसे बाद दफा तो मोरल पुलिसिंग का तक नाम दिया गया है। मीडिया में चूंकि इस तरह की भी खबरें आई हैं, तो मैं चाहूँगा कि डीसीपी साहब इस पर कुछ अपनी राय पेश करें। और दूसरी चीज़, जो खानूनदान, मेरी जिन खानूनदानों से बात हुई है उन्होंने यहाँ तक बताया है कि कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन का भी जो है इसमें पॉइंट नजर आता है जब पुलिस की जानिब से चबूतरा मुहिम चलाई जाती है, या फिर कुछ ऐसे जैसा कि शादियों का मामला है। एडिशनल डीसीपी साहब ने हालिया अरसे में जो है तमाम शादी खाने के जिम्मेदारान के साथ इजलास मुनक़िद किया और उसमें पाबंद किया गया कि आप 11 का 12 बजे के दिन के अंदर जो है फंक्शन अपने ख़त्म कर देंगे। जबकि मैं बताऊं कि बाज़ रस्म और रिवाज का ताल्लुक आपकी तहजीब से होता है, आपके मजहब से होता है। अगर हम खासकर मुसलमानों में देखें तो एक सांसद की रस्म है या फिर मांझी की रस्म है, तो जो एक कई दिनों से चली आ रही है। और होता यह है कि रात में देर गए तक 3-4 बजे तक ये रस्में चलती हैं।
तो वहाँ पर आप कॉन्ट्रडिक्शन इसको कैसे हैंडल करेंगे? उन फंक्शंस को जो है आप क्या वाकई कानून के घेरे में वो आएंगे या फिर कानून से मुस्तस्ना रहेंगे? हर दिल को रखने वाला हर दिल अजीज अपना पीसीपी श्री पी सत्यनारायण साहब, साथ साथ में आयुब शाह जवाहर स्कूल, कुर्रम साहब, खलील रहमान साहब, मस्तान साहब और मोहम्मद नईम आसिफ अली साहब, उसामुद्दीन साहब और मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको तहे दिल से सलाम अलैकुम। आसिफ भाई माफ करना, मेरे दिल दुख रहा आपको से बात। आप हमारा डराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं, नेशनल बैंक ऑफ स्टेट में तो हाँ सवाल करता मैं नहीं भाई, गलत बोल रहा नहीं भाई, एक मिनट, ये भी पब्लिक है ना, ये भी पढ़े लिखे है ना, चबूतरा मिशन जरूरत नहीं बोल के हाथ उड़ा भाई, चबूतरा मिशन जरूरत नहीं है लोग हाथ उड़ा। बात ये है भाई, बात ये है चबूतरा मिशन में हमारे से कुछ गलती हो तो बोलो, हमारे से कुछ गलती हो तो बोलो। सांप वाला बच्चे को जरूर बेगुस पकड़ के उसको मारे साहब, बेगुस पकड़ के उसको सताए साहब, क्या साहब ये बात बोला हम मान के कैसे बोलते चबूतरा मिशन बोलते रात में 17 पुलिस में हम काम करते हैं, हर पुलिस वाला हमारे जैसा गारंटी नहीं है, कोई ना कोई गलती करता हम उसको मानते, इनोसेंट लाता होगा हम उसको मानते, मगर चबूतरा मिशन को ऊपर आपको नहीं करना, हमारे गलतियों को ऊपर मिल गया मैं मान। सिर्फ और सिर्फ जो गए काम करते हुए जो फिर रहा है वो लोगों को चबूतरा मिल देता है क्या भाई? आते नाइट बाजार नाम पे आते बच्चों को छेड़छाड़ी करते, छोड़ देना, बाइक रेसिंग करते, छोड़ देना। नाइट बाजार का बात महीना वो नहीं है, नाइट बाजार क्या है? जो पढ़े लिखे सो मियाँ बीवी बच्चों के साथ में आए, बाजार कर लिए, खाना खा लिए, मतलब वो है आके छेड़छाड़ करने के लिए, बाइक रेसिंग करने के लिए, क्या भाई? करस्पॉन्डेंट्स हो और मीडिया वालों को, मेरे साथी पुलिस वालों को, सबको, और खासकर हसरत हुसैन नजवी साहब जो है, आपको सबको मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए मैं खत्म कर रहा हूँ। खुदा बाबूराव साहब को मेरे को थोड़ा फेलिसिटेशन करने के लिए, जो पुराना शहर का स्कूल्स मैनेजमेंट्स और NGOs एंड लाइक माइंडेड यूथ ऑफ साउथ आज ये प्रोग्राम को बुलाने के लिए पहले दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उन लोगों को, और ये मीटिंग को आने वाले मेहमान आयब शाह, कुर्रम साहब, खलील रहमान साहब, मस्तान सर, सबका सपोर्ट में हम लोग थोड़ा सबसे एज कम्पेयर टू थोड़ा आगे हैं। हम लोग ये मामला कंटिन्यू करेंगे, को बहुत मेहनत करना, नॉर्मल पीपल को ट्रैवल सच में नहीं करना। अभी टेक्नोलॉजी आ गया, जियो टैगिंग, जो मुजरिम होता है, जो मुजरिम से कॉमन लोग को, पब्लिक को तकलीफ परेशानी होता है, उनको पकड़ना, उनको टेक्नोलॉजी में स्पॉट करके GPS को इसमें करना। तो इसीलिए ट्रैवल सच को नॉर्मल लोग को कोई तकलीफ, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। चबूतरा मिशन क्यों लगाया? एक छोटा सुबह तक वो आवारा फिरकर, बंजारा सुक्का सेंटर में फिरकर, वहां चबूतरा में बैठकर कुछ लड़कियां को छेड़ना,
अरे हमारा फादर रियाद में है, नहीं हमारा फादर कतर में है, शारजा में है, हम वहाँ है यहाँ है, ये शर्त कम से कम 5,000 है। नहीं ये पुराना पुल फ्लैट में खरीदा, ऐसा बोल देता। एक आदमी मैं बबलू क्या है लेदर्स का सैलून करता हूँ, ऐसा बात नहीं ये पेड़ के नीचे में देखा है कल। तो ऐसा झगड़ा शुरू होता, स्टैबिंग कर रहे जो उन लोग डैमेज हो रहा है और दूसरा साथी लोगों को डैमेज कर रहे हैं, उनको पकड़कर मुस्लिम दे रहे। अभी उन लोगों को पकड़कर थोड़ा ऐसा करके जो मुजरिम है थोड़ा बुरा नाम ला रहा है उनको पकड़। अगर नहीं तो हमको क्या जरूरत है? अभी 24 आवर्स में 18 घंटे कर रहे, वो 3-4 घंटे भी हम इंस्पेक्टर्स को हम टाइम दे रहे। हमारा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। कोई गैंग रेप नहीं होना, कोई किडनैप नहीं होना, कोई मासूम बच्चे मर्डर केस में नहीं फंसना, कोई बुरा नाम लाना, कोई क्रिमिनल भी आना। कुछ ही ठीक है, कुछ ही आज तेलंगाना न्यूज में एक लड़की आधा तेलंगाना का न्यूज पर तो वो आया, वो ड्राइवर हिंदू है, उनको पूरा मार दिया एक चौधरी में। वो बोल रहा लड़की अरे हमारा टीवी है, हमारा वो सबको एक आदमी को ऐसा, उनको मालूम नहीं सर हमारा ठीक है कुछ करना चाहिए। वो टीवी में ऐसा बोल जा रहे, नहीं बच्चों को मालूम नहीं, वो लोग दूसरा एक दोनों ऐसा नहीं होता, जानबूझ कर करेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। तो अचानक को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो गया, ऐसा हमको नोटिस किया। बाबूराव साहब कहीं का निकामुद्दीन इनकाउंटर में कुछ मालूम नहीं, कुछ लोग 4-5 लोग कर दिया जानबूझ कर। वो हुआ आलेर में, वो आदमी ईस्ट जोन में, ठीक है यहाँ हो गया। हम भी बहुत संभाल के वो पत्थर मारते उस दिन में कोई बहुत पेशेंट में रखा, फ्राइडे प्रेस में भी स्टार्ट कर दिया। बाद में क्या हुआ, ये पुलिस को ये कुछ नहीं कर रहा है, डीसीपी साहब कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। छोटा मासूम बच्चा कितना है ये 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल, वो बच्चे को क्या मासूम बच्चे क्या मालूम है? अरे सब मार रहे थे, हम भी मार किसी को चोट लगा नहीं, लेकिन 13 नॉन-बेलेबल केस रजिस्टर होगा, 307 असॉल्ट ऑन द पुलिस। अभी तक बेल मिला नहीं। आदिल को पीडी एक्ट में कुछ 4-5 आदमी अभी तक बेल मिला नहीं। इसी टाइम में क्या गलती कर दी पार्टी की बॉस ने। सबको वीडियो है आजकल, वीडियो में आइडेंटिफाई करके सब चला है, वो रोना शुरू कर दिया। टास्क फोर्स वाला सभी लोग आया तो मार दिया, मार रहा है वीडियो दिखा। मेरे को बहुत, क्योंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से आया, हमारे पुराने शहर को एक फैमिली तरफ सज रहा हूँ। हमारा फैमिली में ऐसा आदमी बनेगा तो ठीक है, अभी आप करेंगे तो जिंदगी भर बोस्टन स्कूल में पढ़ना है, जूनियर कोर्ट को जाना है। क्या गलती कर दिया? मार दिया 2 बार, कोई तो कुछ लोग तो अरेस्ट कर दिया। बाद में मैं बाबूराव साहब को बात करके कानूनी काम में सबको अरेस्ट कर दिया, लेकिन कानून के जो लूपहोल्स हैं वो सभी उठा के बाहर आ रहे हैं। इसमें एक पॉइंट है, अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब वो पुलिस को मारना, तो इंटेंशन होना है। बच्चे को इंटेंशन है। मैं पूछा रहे बच्चे क्या है, मेरा नानी एक पैरासिटामोल को बोल दिया क्या है, सभी लोग मार रहे, हम भी 2 मक्खन मारे। मैं गए वापस, अरे किसके लिए मालूम नहीं, पर क्यों मालूम मारना, ऐसा मजा, बहुत मजा आया, इतना ही है। अभी क्या करना मालूम नहीं, पुलिस को तुझे डर लग रहा है, मेरे को पता नहीं, हमारा माँ बाप डर है, तो कोई इंटेंशन नहीं। ये बच्चे को हम बर्बाद नहीं करने के लिए तैयार नहीं। सीपी साहब को बात करें, साहब ये इंटेंशन नहीं, कोई मोटिव नहीं, कोई वेंजेंस नहीं, हमारा गलती भी है, ठीक है, हमारा एनकाउंटर हो गया तो पुलिस थोड़ा संभाल के रखने के लिए, अगर संभाल के रखते तो थोड़ा फर्स्ट पहले ऐसा करेंगे तो वो उन लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता था। तो इसीलिए 42 बच्चों निकाल दिया। एक पत्थर मारने एक आदमी को अभी तक
केस इसमें है, पुलिस कुछ कहीं सताया इस जोन को, वो अरे क्या बहुत मौका मिला है, 2-3 पुलिस को मारेंगे, इस मौका में ऐसे सोचा हो, बात नहीं कर रहा। एक आदमी को ऐसा भी अगर ये है तो मारता था, मारता। तो इसीलिए इतना हम हर केस इसमें एकदम निकाला कि रात में चबूतर युद्ध को, एक युद्ध को हम करने वाले हैं, किसी को तकलीफ नहीं देने वाले। जो है बाहर के डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट करने के लिए हमारा फैमिली मेंबर समझ कर ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरूर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो आसिफ भाई कोई कुछ गलती आ रही तो हम करेक्ट करेंगे, कोई शर्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जानबूझकर हमारा टीम किसी को एक आदमी को तकलीफ परेशानी नहीं करेंगे। हम यहाँ लाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए शुक्रिया। चाहते हैं कि ओल्ड सिटी में कोई चेंज आए। यकीनन पिछले 3-4 साल से ओल्ड सिटी में कुछ तब्दीलियां देखी जा रही हैं, लेकिन सत्यनारायण साहब के दौर में जिस वक्त ये वेस्ट जोन में पहली मरतबा गार्डन सर्च किए थे, और शुरुआत गार्डन सर्च की शायद सत्यनारायण साहब ही हैं जिन्होंने की है सिटी में। वेस्ट जोन में एक गार्डन सर्च हुआ, गार्डन सर्च की बात कर रहा हूँ। मांगल बस्ती और भूलपेट, ये 2 एरियाज में गार्डन सर्च सत्यनारायण साहब पहली मरतबा किए थे वेस्ट जोन में। उस वक्त कुछ इलाकों के साथ मेरे जहन में ये बात आई थी कि पुराने शहर में भी इस तरह का कोई सर्च हो, ताकि उन लोगों पे हाथ डाला जा सके, पुलिस उन लोगों पे हाथ डाले, सीनियर ऑफिसर की निगरानी में, जिनके ताल्लुक से ये समझा जाता है कि इन्हें कोई छू नहीं सकता। Al-Ehsan School, Al-Ehsan. Come on. And Meridian Junior College, Mr. Firdaus Sharif.